Okay. So today's topic is conservation of resources. Okay. You have earlier also in the earlier classes you have studied about conservation of resources. So what do you understand by conservation of resources and why do we need to conserve resources? Anyone who want to answer can write in your chat box. What is conservation of resources? No need to write the complete whole soul definition. Just write this in simple words. What do you understand by conservation of resources? I just want to know whether you know its answer or not. That's it. बड़ी बड़ी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. सिंपल वर्ड्स में बताइए. What do you understand by conservation of resources? Sustain them for future use. Okay, Himanshu Saini, correct one. Any other student? Yes, very good, Pragya, correct one. Utilizing wisely, very good, Melvin. So basically, if we're talking about use them carefully in present and conserve them for future use. Okay, to save them for future generation, for our future generation, so that they can also avail them, they can also use them. Okay, so basically, if we talk about conservation of resources, in simple words, we can define it. It is a judicious and planned use of natural resources. Judicious manner में wisely उन्हें use करना और फ्यूचर जनरेशन के लिए उन्हें क्या करके रखना है, सेव करके रखना है. लास्ट क्लास में हमने रिसोर्स प्लानिंग के बारे में भी पढ़ा था. ठीक है, तो विद जुडिशियस मैनर विद प्रॉपर प्लानिंग यूज ऑफ रिसोर्सेज. ओके, दैट्स इट. दो वर्ड्स याद रखने हैं, जुडिशियस मैनर एंड विद प्रॉपर प्लानिंग. दैट इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. नाउ व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज? क्या जरूरत है हमें रिसोर्सेज कंजर्व करने की? तो फर्स्ट वन, मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल. वंस दे गेट एग्जॉस्टेड कैन नेवर बी रीयूज. यानी हमें सबसे पहले तो क्यों कंजर्व करने की जरूरत है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल है, दे आर नॉन रिन्यूएबल, यानी वो वापस से रिन्यू नहीं हो सकते. वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक इन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ओके, वहां पे हमने रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल के बारे में पढ़ा था. तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, दे गेट एग्जॉस्टेड, वो खत्म हो जाएंगे अगर हम उनका एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, उनका ओवर यूज करेंगे और उनको वापस से रीयूज करना इम्पॉसिबल हो जाए. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज व्हाई वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज. Second is economic development of a nation depends to a great extent on the richness, development and management of the resources. We are while discussing this whole chapter, we are discussing resources in context of development only. कि resources से किसी भी nation का development कैसे हो सकता है. ओके, तो दे आर हम कह सकते हैं दे आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. अगर रिसोर्सेज अच्छे होंगे किसी भी नेशन में तो ऑब्वियसली वहां का इकोनॉमिकल जो भी डेवलपमेंट है दैट विल बी हाई, वो बहुत ज्यादा होगा और बहुत अच्छा होगा. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किसी भी नेशन का उस नेशन में प्रेजेंट जितने रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है. ओके, दैट इज व्हाई वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज. अगर हम उन्हें आज यूज करके सब खत्म कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा? हाउ विल दे यूज इट? ओके, और आगे जो हमारा डेवलपमेंट होने वाला है अपकमिंग ईयर्स में, वो भी क्या होगा? एक जगह जाकर रुक जाएगा. थर्ड पॉइंट, inappropriate and reckless utilization of resources can deplete them. यानी ज्यादा अगर हम यूज करेंगे रिसोर्सेज को, इससे क्या होंगे? रिसोर्सेज विल डिप्लीट. एंड ओवर एक्सप्लॉइटेशन कॉजेज डैमेज टू द एग्जिस्टिंग एनवायरमेंट. यानी ज्यादा यूज ना करें हम उसका, जिससे कि हमारे एनवायरमेंट है उसको डैमेज पहुंचे. दैट इज ऑल्सो वी नीड टू कंजर्व रिसोर्सेज. सो दीज आर दी 4 पॉइंट. First one is about the non-renewable resources कि ज़्यादा use करेंगे तो they will get exhaust and that can never be reused.
Second one is economic development is directly proportional to its depending upon the richness of the resources in that nation. Third is inappropriate and reckless utilization of resources can deplete them. इससे खत्म हो जाएंगे. And fourth point is over exploitation can damage the existing environment. That is why we need to conserve resources. Third, now next topic is about land resources. You know very well about land resources. You have also heard about the word lithosphere. Lithosphere के बारे में सबने सुना है ना? It is one of the domain of our environment, which is basically consist of the land portion of the earth. Earth में जितना भी land portion है, that will be included in lithosphere. Okay. So what is the importance of land resources? Land resources किस लिए important है? You can see in our environment, our school building, your houses, the trees, the rivers, the mountains, everything is on land. ठीक है? सबका बेस कहाँ पे है? लैंड पे. हमें कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, हमें अपना घर बनाना है, हमें एग्रीकल्चर करना है, इसके लिए क्या चाहिए हमें? ऑब्वियसली वी नीड अ प्रॉपर लैंड. हमें लैंड चाहिए. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज. लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ utmost importance. It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. It is important to use the available land for various purposes with careful planning. जिस तरह से हमने resources planning पढ़ी, now resources planning में now we are going to study about land resources and land resources की हमें भी क्या करनी है? इसकी भी हमें careful use करना है. इसका जो utilization human being कर रहे हैं उसे एक प्रॉपर मैनर में और एक प्लानिंग के साथ करना है. ठीक है? यू नो नाउअडेज द नंबर ऑफ ट्रीज आर डिक्रीजिंग, डिफॉरेस्टेशन इज इंक्रीजिंग. ठीक है? तो ये क्यों हो रहा है? बिकॉज वी डोंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंड रिसोर्सेज. वी आर नॉट अवेयर अबाउट द इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वी आर गोइंग टू फेस इन फ्यूचर. फ्यूचर में हमारे पास जो प्रॉब्लम्स आने वाली है उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं. ठीक है? इफ वी टॉक अबाउट अ शॉर्ट एग्जाम्पल, इन दिस पैंडेमिक, in last few months you have heard about the unavailability of oxygen. Okay, ऑक्सीजन सिलेंडर है या ऑक्सीजन है. अगर हमारे यहाँ सफिशिएंट ट्रीज हो या फिर जो भी कॉलोनी, जो सिटीज है, जो हम कहें जो मोस्टली मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, वहां पे नंबर ऑफ ट्रीज आर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली. वहां पे लोग फॉरेस्ट को काट के अपने कंस्ट्रक्शन वर्क कर रहे हैं एंड दैट इज द रीजन, दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ऑक्सीजन लेवल इज डिक्रीजिंग. ओके, इसी वजह से जो कोविड पेशेंट्स है उन्हें इतना सफर करना पड़ा. उन्हें सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे ऑक्सीजन के. मोस्टली हैव कितने ने अपनी जान दे दी इसकी वजह से. तो ये भी कहीं ना कहीं ह्यूमंस का ही फॉल्ट है. ओके, कि लैंड रिसोर्सेज को एक केयरफुल मैनर में, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ हम लोग यूज नहीं कर पा रहे. ओके, सेकंड इज इंडियाज. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लैंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, हियर आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन. यू कैन सी अ पाई चार्ट ओवर हियर. Here it is. Can you see the pie chart? Land under important relief feature. Now India में जितना भी land है उसमें कुछ ना कुछ features हैं. हम कह सकते हैं कि physical features like plains हैं, mountains हैं, plateaus हैं. Okay? तो आप देख सकते हो जो blue portion है ये सबसे major part है या सबसे बड़ा part है land का, which includes the plains. यानी ये plain area है जहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस सपोर्ट होती हैं, सपोर्ट करता है, जहाँ पे वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ इजीली यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है. सेकेंड थिंग यू कैन सी हियर इन द पर्पल कलर, इट इज 30% कंसिस्ट ऑफ माउंटेन्स. यानी इंडिया का जो पूरा लैंड है उसमें से 30% पोर्शन ऐसा है जहाँ पे माउंटेन्स हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्लेट्यूज विच इज विद 27%. Okay, so these are some physical features of land occupied on our earth. यानी हमारे इंडिया में इतना पोर्शन जो है प्लेन्स का, माउंटेन्स का और प्लेट्यूज जो है वो कवर करते हैं. 43% of the total land is plain, providing opportunities for agriculture and comfortable living. कि अब जो प्लेन्स का जो भी एरिया है वो किस लिए यूजफुल है, ह्यूमन काइंड कैसे उसे यूज कर रहा है फॉर देयर कंफर्टेबल लिविंग एंड आल्सो फॉर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. क्योंकि माउंटेन्स पे और प्लेट्यूज पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इज
not possible. Second is 30% of is 30% is mountainous, provides forest, wildlife and perennial rivers. Obviously you know very well कि जो rivers है उनका origin कहाँ से होता है, mostly from the माउंटेन्स. तो माउंटेन से रिवर्स निकल रही है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये सपोर्ट कर रहा है, प्लस फॉरेस्ट को भी ये सपोर्ट कर रहा है. थर्ड इज 27% ऑफ प्लेट्यू प्रोवाइडिंग मिनरल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड एरेबल लैंड्स. नाउ स्टूडेंट्स, डू यू वांट कि सारे सेंटेंसेस मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखवाऊं? एनीबडी? किसी को अगर लग रहा है कि नहीं मैम आप नोट्स बनवाइए कॉपी में, तो मैं बनवा सकती हूँ. और यू कैन राइट रफली इन योर नोटबुक्स. आप रफली अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं. आई कैन रिपीट माई सेंटेंसेस वंस. ओके, ठीक है. Yes, so 27% is plateaus which contains mineral resources, forest and arable lands. Mountains and plateaus contain river valleys that offer favorable locations for human habitation. Monsoonal climate has made our land more valuable from agriculture and vegetational point of view. यानी you know हमारे जो इंडिया है यहाँ पर 4 सीजन्स होते हैं as compared to other countries. वहाँ पर सिर्फ समर और विंटर्स ही होता है. हमारे यहाँ पे 4 सीजन है, जिससे कि हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उसे काफी सपोर्ट मिलता है. हमारे यहाँ की जो एग्रीकल्चर है वो मोर वैल्यूएबल हो जाती है इसकी वजह से, और इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो वेजिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है. तो ये जो हमने पार्टीशन देखा प्लेन्स, माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज का, इट इज ऑफ इंडिया. इंडिया के बारे में ये बताया गया है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज लैंड यूटिलाइजेशन. कि जो लैंड है, जितना भी पूरा लैंड है, उसको किस तरह से यूटिलाइज किया गया है. आपको पता है लैंड पे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस होंगी, कंस्ट्रक्शंस भी होंगे, रोड्स बनेंगे, बिल्डिंग्स बनेंगे, होटल्स बनेंगे, रेस्टोरेंट्स बनेंगे. तो इतना बड़ा जो लैंड का पोर्शन है उसको किस तरह से ह्यूमन बीइंग ने अपने नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज किया है. ओके, सो फर्स्टली लैंड का सबसे बड़ा पोर्शन जो है इट इज अंडर फॉरेस्ट. किसमें है? फॉरेस्ट. एक यूटिलाइजेशन यानी लैंड को यूज कैसे कर सकते हैं हम? जहां पर फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट भी तो लैंड पे ही स्टेबल है ना. नेक्स्ट थिंग, फैलो लैंड्स. नाउ व्हाट इज फैलो लैंड्स? ऐसे लैंड्स या ऐसी जमीन जो जहां पर हम लोग एग्रीकल्चर कर सकते हैं, लेकिन वहां पर कुछ लास्ट फ्यू ईयर से या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड से वहां पर एग्रीकल्चर नहीं किया गया. ठीक है, अब इनकी कैटेगरी भी अलग अलग है कि अगर 1 साल से ज्यादा जहां पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं की गई है तो वो कौन से लैंड्स होंगे. 5 साल से ज्यादा अगर वहां नहीं की गई तो वो कौन से लैंड्स होंगे. वी विल डिस्कस अबाउट इट इन द लेटर क्लास. सो दीज आर फैलो लैंड्स. यानी लैंड का एक पोर्शन तो फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट ने इंक्लूड कर लिया, कवर कर लिया. नेक्स्ट जो है फैलो लैंड्स ने कवर किया. ओके, नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया. नेट सोन एरिया मतलब पूरे इंडिया में या पूरा जो लैंड है उसमें कितना पोर्शन है जहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है. ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की या डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं. ओके, तो आधे से ज्यादा पोर्शन कहाँ पे है? नेट सोन एरिया में. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस अलग अलग जगह कौन से लैंड पे कितना एग्रीकल्चर हो रहा है, क्रॉप यील्ड हो रही है, दैट इज इन नेट सोन एरिया. फोर्थ इज लैंड not available for cultivation. यानी ऐसे लैंड जो कल्टीवेशन के लिए यानी एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल ही नहीं है.
दिस इंक्लूड्स द बैरन लैंड्स, जो बंजर जमीन होती है, बंजर भूमि, जहां पर एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता, फर्टाइल सॉइल नहीं है वहां पे, दैट इज इंक्लूडेड इन दिस पार्ट. Next is fifth one, we can say other uncultivated lands. अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स यानी ऐसे लैंड्स जो परमानेंट पेस्चर लैंड्स में कन्वर्टेड है, जहां पर कंस्ट्रक्शन वर्क है और जहां पर ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स हैं, वो वाला पार्ट जो है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड में इंक्लूड होगा. सो दीज आर द फ्यू यूटिलाइजेशन और द स्टेप्स फ्रॉम वेयर वी कैन सी हाउ लैंड इज यूटिलाइज्ड. लैंड को कैसे यूज किया गया है? एज अ फॉरेस्ट, fallow lands, net sown area, land not available for cultivation, that is barren land or waste land, and the fifth one is other uncultivated land. Okay, so forest में आपको कोई confusion नहीं होगा कि forest के फॉर्म में हम land को कैसे यूज कर सकते हैं. You know very well कि किसी भी लैंड पे बहुत बड़े पोर्शन पे जहाँ पे बहुत वेराइटी के ट्रीज हैं, ठीक है, दैट इज फॉरेस्ट ओनली. ओके, तो इसको समझाने की कोई बात ही नहीं है. सेकेंड कम्स टू फैलो लैंड्स. अब फैलो लैंड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि ऐसी जमीन या ऐसा लैंड जहां पर एग्रीकल्चर हो सकता है लेकिन वहां पर हम कर नहीं रहे हैं. ठीक है, जस्ट सपोज किसी ने कोई बहुत बड़ा प्लॉट खरीद लिया है और वहां पे वो 10 साल से ऐसे ही पड़ा है, ना तो वहां कंस्ट्रक्शन हुआ है, ना वहां कोई एग्रीकल्चर कर पा रहा है, तो ऐसे लैंड को हम क्या कहेंगे? फैलो लैंड. Fallow lands are divided into two categories. First one is current fallow and the second one is other than current fallow. Okay, so current fallow is not cultivated for one or less than one agricultural years. Now it is divided on the basis of time period. यानी ऐसा लैंड जो कि एक या एक साल से कम के लिए एग्रीकल्चरल ईयर के लिए जहां पर कल्टीवेशन हुआ ही नहीं, that is current fallow land. Okay, and the second category is other than current fallow, that means not cultivated for the past 1 to 5 agricultural years. यानी जहां पर पिछले 5 साल से कोई भी कल्टीवेशन नहीं हुआ है. ओके, नेक्स्ट इज नेट सोन एरिया, जो कि बहुत बड़ा पोर्शन इंक्लूड करता है. इट कवर्स 46% ऑफ द लैंड. जो भी लैंड पोर्शन है उसका 46% कम्स अंडर नेट सोन एरिया. यानी जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर एग्रीकल्चर यानी कल्टीवेशन कहाँ पे हो रहा है, कौन सी फसल कहाँ पर उगाई जा रही है, ये हम नेट सोन एरिया 46% जो मैंने बताया, इट इज अबाउट द होल कंट्री. ये पूरे कंट्री के बेसिस पे बताया, जबकि अलग अलग स्टेट का नेट सोन एरिया भी वैरी करता है. जैसे पंजाब और हरियाणा का नेट सोन एरिया ज्यादा होगा, अलग होगा इन कंपेयर टू असम, मिजोरम, म्यांमार. ये जो चीजें हैं इधर के जो स्टेट्स आ जाते हैं 7 सिस्टर्स के, उनके कंपैरिजन में बाकी स्टेट्स का जो भी नेट सोन एरिया है वो डिफरेंट होगा. ओके, तो जो हमारे पूरे कंट्री का नेट सोन एरिया है दैट इज 46% एंड इट कवर्स द मोस्ट ऑफ द पार्ट. नेक्स्ट इज लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, यानी ऐसी जमीन जो कि कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल ही नहीं है. फर्स्ट वन इज बैरन एंड वेस्टलैंड, जो बंजर भूमि है, फर्टाइल नहीं है सॉइल, वहां पर एग्रीकल्चर हो ही नहीं सकता. एंड सेकेंड इज जहां पर रोड्स, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे स्कूल सेटअप है, आपकी कॉलोनीज बनी हुई है, अब उस पोर्शन पे भी तो हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, है ना. तो ऐसा एरिया जो कि अवेलेबल ही नहीं है. अब हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं तो वी नीड हॉस्पिटल्स ऑल्सो, वी नीड हाउसेज ऑल्सो, वी नीड होटल्स ऑल्सो, रेस्टोरेंट्स, रोड्स. ओके, ईच एंड एवरीथिंग वी नीड. ठीक है, तो ये सब चीजों के लिए भी क्या चाहिए? लैंड तो चाहिए ना. रोड कहाँ पे बनाएंगे? हवा में थोड़ी बनाएंगे, लैंड पे ही बनाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड. नाउ अदर अनकल्टिवेटेड लैंड इंक्लूड्स वेस्ट लैंड व्हिच कैन बी कल्टिवेटेड, यानी ऐसे लैंड इसमें इंक्लूड किए जाएंगे जहां पर कल्टीवेशन किया जा सकता है. ऐसे वेस्ट लैंड जहां पर ज्यादा एफर्ट करके उस सॉइल को फर्टाइल बना के वहां पर हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट कर सकते हैं. लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चरल ईयर्स. नो, इट इज नॉट. सेकंड इज लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स, यानी ऐसी जगह, ऐसा लैंड जहां पर बहुत सारे पेड़ है,
मिसलेनियस ट्रीज है वहां पे, बहुत सारे हैं। जैसे आपने उत्तराखंड में या ऐसी कोई जगह देखी होगी जहाँ पे लंबे लंबे पेड़ खड़े रहते हैं, वहां पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, ठीक है। वो जो पूरा जो एरिया है वो ट्रीज से घिरा हुआ है, ठीक है। हम ट्रीज को काट भी नहीं सकते और वो जो लैंड है हम उसे कल्टीवेशन के लिए यूज भी नहीं कर सकते। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन इंक्लूड करता है, कवर करता है लैंड का, ठीक है। परमानेंट पेस्चर्स एंड ग्रेजिंग हर्ड्स, यानी कुछ ऐसा पोर्शन है लैंड का जो कि परमानेंट पेस्चर लैंड्स में कन्वर्टेड है। पर पेस्चर लैंड्स मीन चारागाह, जहाँ कैटल्स होती हैं, लाइक शीप्स है, गोट है, बफेलो है, काऊ है, ये सब कहाँ चारा चरेंगे, इनको भी तो हरी हरी घास चाहिए खाने के लिए, है ना। तो कुछ ऐसे एरियाज है, जैसे आपने हिमाचल का कुछ एरिया देखा होगा, माउंटेनियस जो एरिया है या थोड़ा हाइट पे जो एरिया, वो पूरा ग्रीन होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं परमानेंट पेस्चर लैंड्स। यस मनाली सोनी, कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर फार्मर्स ये प्रोसेस के थ्रू एग्रीकल्चर कर सकते हैं, बट नॉट ऑल ओवर द कंट्री, सब जगह नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो कुछ पोर्शन है जो कि नेट सोन एरिया से अलग करके हमने दिखाया है, दैट कम्स अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रुप्स, जहाँ पे अलग अलग ट्रीज हैं और लंबे लंबे पेड़ हैं जिन्हें काटना भी एक जस्टिस नहीं होगा उनके साथ, इसीलिए वहां पर भी वो पोर्शन भी ट्रीज के लिए यूज किया गया है, कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं हुआ है। ओके, सो हियर यू कैन सी इन द पाई चार्ट, दो पाई चार्ट गिवन है। जनरल लैंड यूज categories 1960-61 and general land use categories 2014 and 15। तो दोनों पाई चार्ट को आप कंपेयर कर सकते हो। यू कैन सी हियर, ये जो ग्रीन पोर्शन है इट इज एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, यानी ये ऐसा एरिया है जहां पर एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही हैं। ओके, दिस ब्लू पोर्शन इज फॉर फॉरेस्ट, यानी 18.11% है फॉरेस्ट का पोर्शन। ओके, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर 2017। ओके, Now, if we compare both the pie charts, अगर हम पाई चार्ट्स को कंपेयर करें तो हमारे पास जो सेटिस्फैक्टरी फीचर्स है, यानी जिसे देखकर हमें खुश होना चाहिए, जिसमें इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, दैट इज फर्स्ट थिंग 46.24% ऑफ द टोटल लैंड एरिया फॉल्स अंडर नेट सोन एरिया, यानी 46.24% जो एरिया है वो इतना एरिया है कि पूरी पॉपुलेशन के लिए सफिशिएंट फूड सप्लाई हो सकती है। हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी भी फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकती है, इतना हमारे पास एरिया है, ठीक है। तो नेट सोन एरिया क्या हुआ कि जो भी पॉपुलेशन है वहां पे फूड सप्लाई का जो काम होगा वो इस एरिया से या इतने पोर्शन लैंड से किया जाएगा। वी कैन इजीली फुलफिल द फूड डिमांड ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ओके, तो ये एक सेटिस्फैक्टरी फीचर है इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग कि इतना पोर्शन अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं, इतना लैंड अगर हम कल्टीवेट कर रहे हैं, तो जो भी हमारी ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके लिए हम फूड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर पाएंगे। Second thing is area under forest has increased from 18.11% to 22.75%. Now in 1960 जो forest का area है that is only 18.11%, ठीक है। वो 18.11% था जो कि 2008 एंड 2009 में इंक्रीज होकर हो जाता है 22.75%। ओके, यानी कि फॉरेस्ट एरिया को हमने इंक्रीज कर दिया है। नाउ बट इट इज नॉट, हम कह सकते हैं कि वी कांट जस्टिफाई, ये ठीक नहीं है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए जो फॉरेस्ट एरिया है, इसके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट इज एरिया अंडर फैलो लैंड हैज डिक्रीज, यानी फैलो लैंड का जो एरिया है, यानी जो अनकल्टिवेटेड लैंड है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर एग्रीकल्चर, उसका भी क्या हुआ है, पोर्शन डिक्रीज हुआ है। तो ये सारे फीचर्स ऐसे थे जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है या अच्छी चीज है, अच्छा हिंट है हमारे फ्यूचर के लिए। नाउ सेकंड इज डिस्टर्बिंग फ्यूचर, यानी कि ऐसी क्या चीजें हैं जिससे कि हमें आगे जाकर प्रॉब्लम्स हो सकती है, विच कैन अराइज इकोलॉजिकल इश्यूज ऑल्सो। तो वो चीजें हैं
फर्स्ट वन इज लैंड अंडर फॉरेस्ट इज ओनली 22%, मच लेस देन द साइंटिफिक नॉर्म्स ऑफ 33% ऑफ द टोटल एरिया। यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा टोटल एरिया है 100% में से उसका 33% जो है वो क्या होना चाहिए, फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए। बट हमारे पास कितना है, ओनली 22%, जो कि बहुत ज्यादा कम है। यानी हमने उस जो लिमिटेशन है या जो स्टेटस है 33% का उसको अचीव नहीं किया है अभी तक। ठीक है, लैंड अंडर परमानेंट पेस्चर्स इज ओनली 4% ऑन दी अदर हैंड। इंडिया हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैटल्स इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली इंडिया में बहुत ज्यादा कैटल्स है। कैटल्स में सारे जो हर्डिंग एनिमल्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं। इट इंक्लूड्स जो हर्ड्स में रहते हैं जो एनिमल्स, दैट ऑल आर इंक्लूडेड इन कैटल्स। तो जो कैटल्स है, इंडिया जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है जहां पर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कैटल्स है, और उनके अकॉर्डिंग, उनके प्रोपोर्शन में जो पैस्चर लैंड है हमारे पास, दैट इज ओनली 4%, वो सिर्फ 4% है। तो वो जो कैटल्स है उनकी रिक्वायरमेंट, उनकी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कि हमारे पास कैटल्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उनको खाना खिलाने के लिए बहुत ही कम लैंड है। तो दिस इज ऑल्सो द डिस्टर्बिंग फीचर, ये भी ठीक नहीं है। सेकेंड इज फैलो लैंड स्टिल ऑक्युपाइज लार्ज परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। अभी भी जो पूरा टोटल एरिया है हमारे पास उसमें से फैलो लैंड जो है काफी ज्यादा पोर्शन ऑक्युपाई कर रहे हैं, जिसको हम यूज कर सकते हैं। अगर हम उसको एक प्रॉपर मैनर में यूज करें तो वहां पर भी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्टार्ट की जा सकती है, बट वहां पर नहीं हो रही है, जिससे हमारे जो एनवायरमेंट है उसमें इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, एंड दैट इज नॉट गुड। ओके, सो दीज आर फ्यू satisfying features plus disturbing features also. Next topic is land degradation. अब हमने land utilization पढ़ा, land के importance पढ़ी. Now how the land is degrading? land का degradation कैसे हो रहा है? land degradation Land degradation refers to the depletion of the land due to faulty agricultural practices, overgrazing, deforestation and mining. So these are the few activities due to which land is degrading. यानी degrade हो रहा है, खराब हो रहा है, या फिर हम simple word में कहें तो pollute हो रहा है, और ऐसा हो जाएगा unfertile, जो कि बाद में future generation भी उसे use नहीं कर पाएगी. Very good, Vandan Vyas. Soil erosion is also one of the effect which is degrading land. Okay, so land degradation refers to the depletion of the land due to faulty agricultural practices, overgrazing, deforestation and mining. Yes, very good. Next, what are the causes of land degradation? Land degradation ho kyun raha hai? First one is natural cause. We can divide them into two categories. First one is natural cause, by various natural agents such as wind, water, etc. In this natural cause we can include soil erosion, waterlogging. Okay, these are some natural causes which causes land degradation, जिसकी वजह से land degradation हो रहा है. Second is human causes. ठीक है, अब obviously natural causes के comparison में human causes ज्यादा होंगे, क्योंकि ह्यूमन की प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा बढ़ चुकी हैं. एग्रीकल्चरल फील्ड में भी हाइब्रिड प्लांट्स हो गए हैं, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स का यूज हो गया है. ठीक है, सीजन के अकॉर्डिंग फ्रूट्स नहीं मिलते. अभी हमें 12 महीने ही कोई भी फ्रूट है, कोई भी वेजिटेबल है वो इजीली अवेलेबल हो रही है. फ्रोजन आइटम्स इंक्रीज हो चुके हैं. ठीक है, तो ये सब चीजें क्या हो रही है, दिस इज ह्यूमन प्रैक्टिसेस आर इंक्रीजिंग, और जिसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन ऑल्सो इंक्रीजिंग. सो फर्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन. यू नो वेरी वेल, फॉरेस्ट की कटाई, जो पेड़ है उसकी बहुत ज्यादा इनडिस्क्रिमिनेटली क्या हो रहा है, उनकी कटाई हो रही है फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क और ऑन द नेम ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कुछ हो रहा है. So deforestation is one of the cause. Second is overgrazing by animals, careless management of forest. You know very well कि forest को भी कुछ categories में divide किया गया है, आपने पढ़ा होगा क्लासेस में भी, लास्ट क्लासेस में.
सो जो फॉरेस्ट है उनका मैनेजमेंट भी ठीक से नहीं हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रही है, प्लस डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। सेकेंड इज माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज की वजह से भी लैंड डिग्रेड हो रहा है। इंडस्ट्रीज का जो वेस्ट है उसे हम लैंड में यूं ही फ्लो कर देते हैं या रिवर्स में हम लोग बहा देते हैं उन केमिकल्स को, जिसकी वजह से वाटर बॉडीज भी पोल्यूट हो रही हैं, एज वेल एज लैंड भी क्या हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है और डिग्रेड हो रहा है। जो भी लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी क्षमता है, जो उसमें क्वालिटी है फर्टाइल लैंड की, वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी, जो कि एग्रीकल्चर के लिए हम यूज नहीं कर सकते। थर्ड इज ओवर इरिगेशन लीड्स टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलिनिटी इन दी सॉइल। अगर हम ज्यादा इरिगेशन यानी ज्यादा पानी देंगे अपनी फसलों में, जो भी क्रॉप्स है, तो इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज सैलिनिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है, एंड ऑल्सो एल्कलिनिटी। सेकेंड इज नेक्स्ट, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज एज अ मेजर कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब इन जितने भी कॉजेज हमने पढ़े, इनमें से सबसे मेजर कॉज है वो है इंडस्ट्रीज का और माइनिंग का। कैसे है, माइनिंग साइट्स आर अबेंडन्ड आफ्टर एक्सकेवेशन वर्क इज कंप्लीट, लीविंग डीप स्कार्स एंड टेरेसेस ऑफ ओवरबर्डनिंग। यानी माइंस, आपने सुना होगा माइंस क्या होती है, जैसे माउंटेन्स में या प्लेन एरियाज में वहां पे एक्सकेवेशन होता है, वहां पे खुदाई होती है, फिर जो भी मटेरियल उनको चाहिए लाइक मिनरल्स चाहिए या जो भी चीज उनको स्टोन्स चाहिए वो वहां से ले लेते हैं और उस जगह को ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हमारी जो लैंड फॉर्म्स हैं वो क्या हो रहे हैं, डिग्रेड हो रहे हैं, वो बर्बाद हो रहे हैं। वहां पे बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, वहां पे कोई यूज ही नहीं कर सकता उस चीज को, वहां पे कुछ भी एक्सीडेंट होने के चांसेस है। तो दिस ऑल्सो लीड्स टू लैंड डिग्रेडेशन। इससे क्या हो रहा है, लैंड डिग्रेड हो रहा है। नेक्स्ट इज मिनरल प्रोसेसिंग, ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन, सेरेमिक इंडस्ट्री रिलीज अ हेवी अमाउंट ऑफ डस्ट which later settles down in the surrounding area। जितने भी इंडस्ट्रीज है जहां से डस्ट रिलीज हो रहा है, धुआं, धूल, मिट्टी जो भी रिलीज हो रही है एक केमिकल के फॉर्म में, वो बाद में जाके क्या करती है, इसी लैंड पे सेटल हो जाती है। अब अपर लेयर जो है वो क्या हो गई, वो पूरी केमिकल से भरी है, तो ऑब्वियसली वहां पे एग्रीकल्चर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी और फिर बाद में कुछ टाइम बाद में वही लैंड क्या होगा, बारन लैंड या वेस्ट लैंड में कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। वहां पे एग्रीकल्चर हो ही नहीं पाएगा, वहां पे लोग मेहनत ही नहीं करेंगे कि यहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सके, क्योंकि वो लैंड फर्टाइल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स एंड वेस्टेज क्रिएट्स लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। जैसा अभी मैंने बताया, इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है उसको रिवर्स में या लैंड में ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, बहा दिया जाता है, जिससे कि लैंड की या सॉइल की जो फर्टिलिटी है दैट इज डिक्रीजिंग। Now we have discussed the land degradation causes, mining and industries also. Now what are the ways to control land degradation? अब इसे हमें कंट्रोल भी तो करना है। अब ऑब्वियसली प्रॉब्लम ह्यूमन क्रिएट कर रहा है तो उसके सॉल्यूशंस भी ह्यूमन से निकालेगा, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एफॉरेस्टेशन, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन को डिक्रीज करो तो लैंड की ऑब्वियसली यस एफॉरेस्टेशन शुड बी इंक्रीज्ड, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, यानी ऐसा नहीं है कि कैटल्स और हर्ड्स को पूरे बाहर छोड़ दिया कि नहीं तुम लोग जितना भी पैस्चर लैंड है उसको खा जाओ, या फिर ऑब्वियसली वो मैनेज नहीं कर सकते, तो ह्यूमंस की जरूरत है वहां पर किस तरह से जो पैस्चर लैंड है उन्हें फ्यूचर्स के लिए भी स्टोर करके रखा जाए, प्रिजर्व करके कंजर्व करके रखा जाए, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। तो वेज टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन इंक्लूड्स एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes. Now stabilization of sand dunes you know very well, a hill like structure formed by the deposition of sand, यानी बहुत ज्यादा जो सैंड है विंड की वजह से किसी एक जगह पर डिपॉजिट होने के बाद एक हिल का स्ट्रक्चर ले लेती है, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, यस, ओके। तो ये जो इरोजन हो रहा है सॉइल का थ्रू विंड के थ्रू क्या होता है, ऊपर की जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो इरोड हो जाती है, वो रिमूव हो जाती है। सॉइल इरोजन का सिंपल सा डेफिनेशन है रिमूवल ऑफ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, ठीक है, जिससे भी लैंड डिग्रेड होता है उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज होती है। तो इस सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, ओके। क्योंकि जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती है दे कैन होल्ड द सॉइल, वो सॉइल को क्या करते हैं, पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है, वहां पे इरोजन के चांसेस कम हो जाते हैं।
नेक्स्ट इज प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट लैंड। अब जो वेस्ट लैंड है उसका भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। कंट्रोल ओवर माइनिंग एक्टिविटीज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो माइनिंग एक्टिविटीज है, उन्हें कंट्रोल करना चाहिए। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी जो भी डिस्चार्ज हो रहा है इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्री से उसका जो उस पर एक प्रोसीजर हो जिससे कि उसके जो जितने भी केमिकल रिएजेंट्स हैं उन्हें अलग कर दिया जाए, और जो सिर्फ वेस्ट है, ऐसा मटेरियल जो डिग्रेड हो सकता है, जो बायोडिग्रेडेबल हो, उसे लैंड में या वाटर में अगर आप रिलीज करोगे तो इट विल नॉट अफेक्ट, ठीक है, वो इफेक्ट नहीं करेगा, बट ऐसा नहीं होता है। सो दीज आर फ्यू वेज टू कंट्रोल लैंड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज soil resources, and we will discuss classification of soil also. Okay, yes, now soil resources. किसी को कोई डाउट इस टॉपिक में, लैंड डिग्रेडेशन और लैंड रिसोर्सेज टॉपिक में आप पूछ सकते हैं। एनीबडी? नो डाउट। ओके, सो व्हाट इज सॉइल? सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं सॉइल रिसोर्सेज में जाने से पहले। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट विच इज लूज, फ्रेगमेंटेड एंड यूजफुल फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड soil. Very simple and definition in one sentence only. The uppermost layer of the earth's crust which is loose, fragmented and useful for plant is called soil. Rocks, climate, plants and animals, local topography and long period of time contributes to its formation and fertility. अब जो soil है, इतने बल्क अमाउंट में हम जहाँ देखते हैं वहाँ हमें मिट्टी दिखती है, वहाँ हमें soil दिखती है। तो ये कोई सडन चेंज नहीं है, ये सडनली इसका क्रिएशन नहीं होता है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ही लंबा टाइम ट्रैवल करने के बाद हमें ये लैंड इस फॉर्म में नजर आती है। यानी इसके फॉर्मेशन में काफी सारी चीजों का हम कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन है। किनका? रॉक्स है। रॉक्स क्या होते हैं? आपने विदरिंग ऑफ रॉक्स पढ़ा होगा कि रॉक्स किस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। उस पे जो भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं, कभी वो लुढ़क के नीचे आ रहे हैं माउंटेन से, कभी बारिश की वजह से वो डिग्रेड हो रहे हैं, उसमें वेदरिंग प्रोसेसेस हो रही हैं, एनिमल्स की वजह से हो रहे हैं। तो वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो टूट जाते हैं, और बाद में एक टाइम ऐसा होता है कि वो बहुत ही फाइन हो जाते हैं, बिल्कुल पतले, एकदम मिट्टी की तरह, या हम कहें आटे की तरह हो जाते हैं। तो यही क्या होते हैं? सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो रॉक्स की वजह से क्लाइमेट का भी एक बहुत बड़ा रोल है इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। प्लांट्स एंड एनिमल्स का लोकल टोपोग्राफी एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंट्रीब्यूट्स टू इट्स फॉर्मेशन। यानी इन सब चीजों से क्या होगा? लैंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, और इससे इनकी फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस व्हिच टेक्स प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं सॉइल में, दैट आर आल्सो इम्पॉर्टेंट। आपने सुना होगा अर्थवर्म्स हैं और काफी कुछ ऐसे इंसेक्ट्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो यूज होते हैं, राइजोबियम है। So all these are contributing in the formation of soil as well as in increasing the fertility of soil. Okay, तो ये सब इसमें अपना contribution दे रहे हैं। Next, there is a soil profile. आप देख सकते हैं यहाँ पे, here it is, कि किस तरह से जो soil है वो डिवाइडेड है। सबसे ऊपर जो है टॉप सॉइल, द अपर सॉइल लेयर, ये जो फर्टाइल सॉइल है दैट इज कलर्ड इन ग्रीन कलर। सेकंड इज सब सॉइल, विदर्ड रॉक्स एंड सैंड एंड सिल्ट सॉइल। यानी ऐसी सॉइल है जो सबसे ऊपर जो सॉइल है वो फर्टाइल है इसलिए क्योंकि वो बहुत ही फाइन है, एकदम पतली है। इट हैज दी उसकी जो पर्कोलेशन रेट है वो भी काफी कम होती है। पर्कोलेशन रेट के बारे में भी हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है। एंड इट हैज दी कैपेसिटी और कैपेबल कि वो जो वाटर है उसे होल्ड करके रख सकती है, और जो सॉइल वाटर होल्ड करके रख सकती है वहां पर ऑब्वियसली एग्रीकल्चर या क्रॉप यील्ड जो है ज्यादा होगी। ओके, तो ये इसीलिए फर्टाइल सॉइल है।
सेकेंड इज सब सॉइल, सिल्ट क्ले सॉइल है ये। हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो इस सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े से कंपैरेटिवली बड़े होते हैं, और इस सॉइल में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इन कंपैरिजन टू द अपर सॉइल लेयर ये थोड़ा कम होती है। ओके, थर्ड इज सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल। अब ये ऐसा पोर्शन आ गया है जहां पर रॉक मटेरियल है, सॉइल नहीं है, या फिर ये बहुत ज्यादा सॉलिड फॉर्म में है। इट इज नॉट इन दी फाइन पार्टिकल फॉर्म, बहुत पार्टिकल फॉर्म में नहीं है, ये एक सॉलिड फॉर्म है। और लास्टली सबसे नीचे जो है दैट इज अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक, यानी ये ऐसे पोर्शन है जहां पे बड़े बड़े रॉक्स आपको देखने को मिले, अनवेदर्ड यानी ये टूटे हुए नहीं है, ये एक प्रॉपर रॉक की फॉर्म में आपको मिलेंगे। ओके, सो दिस इज हाउ अ सॉइल प्रोफाइल लुक्स लाइक। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ soil. We will discuss classification of soil in our next class.